Hello everyone, I'm your science teacher Hemlata Chandolia. Students, today we are going to continue chapter number 15 of class 7 science, that is light. Students, we already had discussed a part of this chapter in our previous video. We get to know what is light and what is the reflection of light, isn't it? And we understand how a plane mirror formed image and how the plane mirror form an image. An image formed by a plane mirror is virtual, erect and as the same size of the object. Clear everybody? We discussed about the curved mirrors which are also known as spherical mirrors, and we know that why we are calling them spherical mirrors, because they are a part of a sphere. Today we are going to discuss about the images formed by the spherical mirrors, and later we will discuss about the images which are formed by the lenses. In previous video, student, we discussed that the spherical mirrors are of two types. First one is concave and convex. Clear everybody? Today we are going to discuss how the images are formed by them. Okay, so let's begin with the images formed by concave mirror. अब इसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? Again we are doing a activity. What we have to do? First we have to take a concave mirror and hold it facing the sun. आपको उसको अपने हाथ में ऐसे लेना है जिससे it is facing the sun, and make sure that you are not see the sun with your naked eyes, because it is harmful for our eyes. Okay, try to get the reflected by the mirror on a sheet of a paper. Clear everybody? Adjust the distance of the paper until you get a sharp bright spot on it. ठीक है, आपको तब तक उसको adjust करना है. Clear everybody? And student, finally this bright spot is in fact what? It is the image of the sun. Have a look in this picture बच्चा. जब हम adjust करके इस bright spot को पा लेते हैं, if we get it, it is what? It is the image of the sun. Okay, notice that this image is formed on screen. और screen क्या होता है? जिसपे हमें image मिलती है. और स्टूडेंट्स, आपको पता है जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ले लेते हैं, इट इज़ नॉन एज रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज क्या होती है जो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती है. ओके, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज और इज कॉल्ड अ रियल इमेज, एंड द इमेज that is formed by a plane mirror could not be obtained on screen. याद आ गया? हमारे जो प्लेन मिरर से हमें इमेज मिल रही थी वो हमें स्क्रीन पे नहीं मिल रही थी. हमने उसको कितना एडजस्ट किया था. सो दैट इमेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लेन मिरर इज वर्चुअल. क्लियर एवरीबॉडी? सच इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. क्लियर? सबको समझ में आ गया? Here that image that we are getting by the concave mirror is real. Students, let's understand again with the help of another activity. Students, here we have to try to obtain the image formed by the concave mirror of a candle's flame on screen. ठीक है, अब हम स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. सबसे पहले हम हमारे कॉन्केव मिरर को फिक्स कर देंगे एक टेबल पे. ठीक है, एंड वी विल मेक अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ कार्डबोर्ड. वी हैव टू कवर दैट कार्डबोर्ड विद अ पेपर शीट, प्लेन पेपर शीट. लुक एट हियर, दिस इज योर कॉन्केव मिरर एंड दिस इज योर शीट और विच इज नोन एज स्क्रीन. क्लियर एवरीबॉडी? अब ये स्क्रीन हमने कैसे बनाई? हमने कार्डबोर्ड को कवर कर लिया. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू पुट अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ मिरर. हमने मिरर के सामने एक जलती हुई कैंडल रख दी. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नाउ वी हैव टू ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन. अब स्क्रीन कहाँ है हमारी? ये रही. ओके, अब जब हमें स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन करनी है, देन वी हैव टू शिफ्ट और वी हैव टू मूव द स्क्रीन. फाइनली हम तब तक इसको मूव करेंगे until we get the sharp image of the flame is
obtained. Clear everybody? और जैसे ही हमें इमेज स्क्रीन पे मिलती है बच्चा, इट शोज दैट कि इट इज अ रियल इमेज, और रियल इमेज है दैट मीन्स इट इज इन्वर्टेड. क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी ऑब्जर्व द इमेज ऑन द स्क्रीन फाइनली, ठीक है, तब हमें क्या पता चलता है कि द इमेजेस विच वी आर गेटिंग बाय द कॉन्केव मिरर ऑन द स्क्रीन इज रियल. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, इज द इमेज रियल or the virtual? In this case we are getting the real image finally. Okay students, but if we shift, if we just decrease the distance between the mirror and the object, that is the lighted candle, then what will happen? We will get a virtual image. Have a look here. जब हम मिरर और कैंडल के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कर देते हैं, then it is possible for us to get a virtual image, and here the virtual image is formed by concave mirror. So students, अब concave mirror से हमें virtual image भी मिल रही है, real image भी मिल रही है. अब real image है तो कैसी होगी? Inverted होगी. Clear everybody? अगर virtual है तो कैसी होगी? इरेक्ट होगी. फाइन, समझ में आ गया? और इमेज मे बी स्मॉलर एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो द इमेज formed by concave mirror may be real or virtual. It will be erect or it will be inverted. It will be smaller or the larger in size than the object. ओके अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर को हम हमारी डे टू डे लाइफ में कहीं यूज़ करते हैं क्या? सुबह से लेके शाम तक कभी भी? अब आप कहेंगे नहीं मैम, हम तो प्लेन मिरर यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, येस, वी आर यूजिंग द प्लेन मिरर फॉर जस्ट डूइंग सो मैनी थिंग्स. मुझे कॉम्ब करना है तो प्लेन मिरर को देखती हूँ मैं, ठीक है. और भी मुझे अगर मेकअप करना है या कुछ और चीज़ करनी है, जो भी मुझे प्लेन मिरर से करनी है. बट वी आर ऑल्सो यूजिंग कॉन्केव मिरर इन आवर डे टू डे लाइफ. सो लेट्स डिस्कस द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. अब कॉन्केव मिरर को हम वाइडली यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में. डॉक्टर्स कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व योर आइज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट. And concave mirrors are specifically used by the dentists to see an enlarged image of your teeth. Clear everybody? कभी गए डॉक्टर के, डेंटिस्ट के पास? जब वो आपके दांतों का चेकअप करता है ना, तो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक दिस, ठीक है. वो हमें मिरर जैसा लगता है. व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज़? इट इज़ कॉन्केव मिरर. इट इज़ यूज्ड टू सी द एनलार्ज व्यू ऑफ योर teeth. Clear everybody? Along with this, the headlights of our cars, our scooters, आपने बैटरी और टॉर्चेस यूज़ किए हैं, उसमें जो ग्लास हम होता है, it is that what type of? It is the reflector of torches. Headlights of your cars, scooters are concave in shape. Have a look here. ठीक है, तो हम इसको यहाँ भी यूज़ करते हैं. सो द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर आर क्लियर एवरीबॉडी. स्टूडेंट्स, आप लोग जब नई साइकिल चलाते हैं और नई साइकिल में वो जब की ट्रिंग ट्रिंग होती है ना, जो बैल होती है, आपने कभी उसमें अपनी इमेज ऑब्जर्व करी है? अगर इमेज ऑब्जर्व करी है तो उसमें आपकी इमेज कैसी दिखती है? So students, when we observe our image in the shiny surface of the bell on a new cycle, we found our image was erect and smaller in size. Clear everybody? देखो, इसका मतलब क्या है? वो जो shiny surface है, वो किसकी तरह वर्क कर रहा है? मिरर की तरह कर रहा है. लेकिन कौन से मिरर की तरह कर रहा है बच्चा? The bell is also a kind of spherical mirror, and the reflecting surface
of the bell is convex. It's very important. It may be asked you in your MCQs. Reflecting surface of a bell which is placed on a new bicycle is an example of concave mirror, convex mirror. It is a convex mirror. Clear everybody? Students, let's understand how the images are formed by convex mirror. And to understand this, let's perform एक्टिविटी. अब हमें क्या करना है, जो एक्टिविटी हमने कॉन्केव मिरर में किया था बिल्कुल हमें सेम वही एक्टिविटी करना है. Just have a look on the setup. This is our mirror, but this time here we are using convex mirror. Clear class 7th? अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? Convex mirror यूज़ कर रहे हैं. And here again our object is lighted candle. And student, when we perform this activity, finally we get it know that we always get image which is virtual. Clear everybody? Have a look here. You are observing that reflection here in the mirror. It is virtual. अब virtual है तो कैसी होगी? Erect. But it is smaller than the object. Clear? So student, the image formed by convex mirror is virtual, erect, and it is smaller in size than the object. Okay? So students, the mirrors used as side mirrors in the automobiles are convex mirror. Have a look here. हमारी कार में, एक्टिवा में, बाइक्स में, स्कूटर्स में साइड में जो मिरर्स होते हैं वो क्या हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स हैं. Clear everybody? Convex mirror can form images of objects spread over a large area so that these help the drivers to see the traffic behind them. Clear everybody? समझ में आ गया? हम जो साइड मिरर्स यूज़ करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में वो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है. और इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं कि जिससे कि ड्राइवर क्या कर सके, उसके पीछे जो सारा ट्रैफिक है, जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसे देख सके. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द अनदर टॉपिक दैट इज द इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज. अब तक हमने मिरर्स की बात करी, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. अब लेंसेज. अब ये लेंसेज क्या होते हैं? स्टूडेंट, यू माइट हैव सीन द मैग्नीफाइंग ग्लास विच इज़ यूज टू एनलार्ज द स्मॉल फॉन्ट साइज. क्लियर? जस्ट हैव अ लुक. ऐसे आप लोगों ने यूज़ किया होगा कभी ना कभी तो. अब ये मैग्नीफाइंग ग्लास को हम कहीं और भी यूज़ करते हैं. वी यूज़ इज टू ऑब्जर्व द स्मॉल बॉडी पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स. ओके अगर आपने कॉकरोच का डायसेक्शन करा हुआ है या अर्थवर्म का डायसेक्शन करा हुआ है, आपने मीन्स योर एल्डर्स हु आर इन द बायोलॉजी स्ट्रीम. ओके तो वो क्या करते हैं, इस मैग्नीफाइंग ग्लास को भी यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोच और एन earthworm. Student, this magnifying glass is a type of a lens. Clear everybody? और आपने ये लेंस कहाँ देखा है घर में? दादू के, अम्मा के, मम्मा के या डैडी के या दीदी के चश्मे में. Clear everybody? So we use the lenses and specs in telescopes or in microscopes. Clear everybody? Those lenses which feels thicker in the middle, जो बीच में तो मोटे लगते हैं comparative to their edges, किनारे से. तो ये क्या होता है? What type of lens it is? It is convex lenses. Clear everybody? बीच में से thick है और किनारों पे से पतला है. Another type of lens is concave lens. अभी concave lens क्या होते हैं? Which is thinner in the middle. जो बीच में से तो पतला है but उसकी जो edges हैं वो comparative क्या है? मोटे हैं, thick हैं. That type of lens is concave lens. Clear everybody? Convex और concave. कॉन्वेक्स क्या होता है? जो बीच में से मोटा होता है और एजेस पे पतला होता है. कॉन्केव क्या होता है? कॉन्केव यानी जो बीच में से पतला है और किनारों पे से मोटा है. हम इनको टच करके इनको पता कर सकते हैं कि इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट इज़ अ कॉन्केव लेंस. ओके स्टूडेंट्स,
These lenses are transparent. अब ये transparent है, इसका मतलब light can pass through them. ओके आपने मैग्नीफाइंग ग्लास भी देखा है, आपने अपना चश्मा भी देखा होगा या दादू का किसी का भी चश्मा होगा. इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और अ ब्राइट लाइट. यस, इसलिए हमें क्या रहना चाहिए? वी शुड बी केयरफुल. You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens on any part of your body. As I told you, it is harmful for us. Clear everybody? Students, let's play with these lenses. अब हम क्या करेंगे? अब हम इनसे बनने वाली images को observe करेंगे, इनसे related activities करेंगे. Okay? अब इसके activities को करने के लिए क्या है? That we have to arrange the lenses. Student, first we will take a convex lens or a magnifying glass. और अब हम इसको क्या करेंगे? We will put it in the path of sun rays and we will place a paper sheet. Have a look here like this. Okay? Place a sheet of paper as shown and now you have to adjust the distance between the lens and the पेपर. और तब तक हम इस डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे जब तक कि हमें पेपर के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट नहीं मिल जाता. क्लियर एवरीबॉडी? एज वी गेट दिस ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर वी हैव टू होल्ड दैट पोजीशन. क्लियर एवरीबॉडी? हम उस पोजीशन को कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करेंगे एंड स्टूडेंट सडनली वी विल ऑब्जर्व दैट व्हाट दैट पेपर बिगिंस टू बर्न. क्लियर एवरीबॉडी? अब वो पेपर जलने क्यों लग जाता है? बिकॉज द रेज, द पैरेलल रेज ऑफ सनलाइट, ठीक है, जो सन से आने वाली जो पैरेलल रेज है, दे गेट कन्वर्ज टू अ स्मॉल पॉइंट ऑन अ पेपर. Clear everybody? Have a look here. Here we get the bright spot on the paper because the sun rays which are coming from the sun, they get converged just because of this convex lens and here this paper will start burning. Clear? Okay, students, now we have to replace the convex lens by concave lens. और जब हम concave lens के साथ ये वाला activity perform करते हैं बच्चा, it is not possible for us to get a bright spot on a paper. Clear everybody? Students, we already had discussed that कि जब हम different mirrors से images को observe करते हैं and finally हमें क्या पता चलता है कि that images which we are getting by concave mirror or the convex mirror, they are different in nature and in size. Clear everybody? अब यही बात यहाँ पर लागू होती है. क्या लेंसेज के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस से और कॉन्केव लेंस से हमें डिफरेंट इमेजेस मिलती हैं? उनका नेचर अलग होता है, उनका साइज़ अलग होता है. क्या वो वर्चुअल होती हैं, रियल होती हैं, इरेक्ट होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं? सो टू फाइंड आउट इट, लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटी. अब उस एक्टिविटी को करने से पहले कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए. देखो क्लास 7th, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो पता है कि भाई ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखते हैं. हमें पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बीच में से मोटा होता है और एजेस से पतला होता है और कॉन्केव क्या है? बीच में से पतला और एजेस यानी किनारों पे मोटा होता है. लेकिन एक बेसिक जो फंक्शन है, इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है, व्हाट इज दैट? अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस. इसका मतलब होता है कि ये कन्वर्ज करता है. दैट मीन्स इट बेंड्स द रेज इनवर्ड. क्लियर? द कन्वर्जेस द लाइट जनरली फॉलिंग नॉट. देखो यहाँ से लाइट आ रही है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है. जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट गिरती है, ये क्या करता है? उनको अंदर की तरफ बैंड कर देता है. क्लियर एवरीबॉडी? और इसीलिए हमारे उस पेपर में क्या लग गई थी? आग लग जाती है. क्लियर? जब हमें वो ब्राइट स्पॉट ऑब्टेन हो जाता है. हियर स्टूडेंट्स, इन कॉन्केव लेंस it diverges the light and that's why it is also known as diverging lens. It's very important question class 7th. Which lens is also known as diverging lens? That means a concave lens. यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही light rays कॉन्केव लेंस पे आती हैं, गिरती हैं, ये इनको डाइवर्ट कर देता है.
ठीक है, इनको फैला देता है और इसीलिए हमें उस पेपर पे कोई भी ब्राइट स्पॉट ऑब्टेन नहीं होता है। ओके, अब एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, उसको हम फिक्स करेंगे। हैव अ लुक हियर, देखो ये वही सेम स्टैंड है जो हमने पहले यूज किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू पुट ऑल दीज, फर्स्ट योर कैंडल इज देयर, योर स्क्रीन इज देयर, हमने इनको टेबल पे रख लिया है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. The distance between the lens and the candle is near about 50 centimeter, and screen is where we already had placed it behind the lens. Okay, try to obtain the image of the candle on a paper or a paper screen that is placed on the other side of the lens. Setup is clear. एक टेबल लेना है, टेबल के आपको आपका एक स्टैंड लेना है, स्टैंड पे आपको आपका कॉन्वेक्स मिरर सेट करना है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस सेट करना है, एक लाइटेड कैंडल रखना है, लेंस और लाइटेड कैंडल के बीच का डिस्टेंस नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, और स्क्रीन यानी जो हमने पेपर से बना रखी थी, वो कार्डबोर्ड जिसके ऊपर अपन ने वाइट पेपर लगा दिया था, वो हमें लेंस के उस साइड में रखनी है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं बच्चा, जैसे ही हम इसको इसके सामने एडजस्ट करते हैं, क्लियर, तो वी विल obtain a image here, and this image is diminished. Clear everybody? And this diminished image of the candle which is formed on the screen, it is known as the real image. Clear everybody? समझ में आ रहा है? When an object is placed at far off distance from a convex lens, the image is formed is real, inverted and much smaller than the size of the object. Clear everybody? समझ में आ गया? Students, if we want to get a sharper image of the candle's flame, then what we have to do, just remember that in the previous activities, we just shift or move the screen. So here also, we may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame. Clear everybody? Have a look here. जैसे आप अपनी स्क्रीन को शिफ्ट करेंगे, it will give you the fine or the sharp image of the candle's flame. Clear everybody? अब हम क्या करते हैं बच्चा, अब हम लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्लोज लाते हैं, उसको कम करते हैं, हमें वैसे ही एक मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। ठीक है, और मैग्नीफाइड इमेज का मतलब क्या है कि दैट इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो हियर द वर्चुअल इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? नाउ वी हैव टू जस्ट ऑब्टेन द इमेजेस विच आर ऑल फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंसेज। अब हमें इसके लिए क्या करना है? सिंपल सेटअप, यू हैव टू फिक्स योर कॉन्केव लेंस इन द स्टैंड and you have to place your object in front of it, and student, we get the image like this, and this image that is formed by the concave lens is always virtual, erect and smaller in size than the object. Clear everybody? यहाँ हमें कैसे मिल रही है? Virtual, erect and smaller in size. अब convex में भी हमें virtual मिल रही थी, erect मिल रही थी, but मैग्नीफाइड मिल रही थी। क्लियर एवरीबॉडी? और हमें यहाँ रियल भी मिल रही थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सनलाइट वाइट और कलर्ड। अच्छा, सब बच्चों ने सनलाइट देखी ना, जो हमें सूरज से रोशनी आ रही होती है, जो सनलाइट की रेज आ रही है, बट यू डोंट हैव टू सी दैम विद द नेकेड आइज। क्लियर एवरीबॉडी? आपने कभी उसमें कलर्स ऑब्जर्व करे हैं? क्या उसमें कोई कलर्स होते हैं? स्टूडेंट्स, लाइट फ्रॉम द सन इज वाइट इन कलर। ओके, इट डज नॉट लुक कलर्ड। बिल्कुल, मुझे भी नहीं लगती। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे आसपास जितने भी रंग हैं, ये फिर कहाँ से दिखते हैं हमें?
ठीक है, आप लोगों ने यू माइट हैव सीन दैट रेनबो, जब बारिश हो चुकी होती है उसके बाद जब बहुत ही लाइट सन रेज आती हैं तब हमें रेनबो दिखता है। और आपने देखा होगा कि रेनबो के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, हम इजीली उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट वी ऑलरेडी हैड लर्न इन आवर प्राइमरी क्लासेस दैट रेनबो इज़ हैविंग 7 कलर्स, isn't it? अब वो जो 7 कलर्स हैं वो हमें नज़र कैसे आते हैं? जब बारिश हो जाती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और जैसे ही सन रेज आती हैं वो क्या होती हैं, वहाँ से डिस्पोज होती हैं। क्लियर एवरीबॉडी? और उसकी वजह से हमें क्या दिखते हैं? रेनबोज के 7 कलर्स। एंड व्हाट आर दे बच्चा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इनको डिस्टिंग्विश करना इतना इजी नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम। और इनके नाम याद करने के लिए हम क्या शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे? विबग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर red. So we can write VIBGYOR, Vibgyor. Clear? ये याद रखोगे? ये है आपका सिंपल सा पैटर्न रेनबो के 7 कलर्स का। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने और कहाँ कहाँ ऐसे कलर्स ऐसे ऑब्जर्व किए होंगे? आपने कभी बबल्स बनाए हैं? जैसे आप लोग वो आजकल बहुत चलता है कि वो आप उसमें ना एयर ब्लो करते हो फिर बबल्स निकलते हैं। कभी आपने उन बबल्स के अंदर कलर्स देखे हैं? व्हेन वी ब्लो सो बबल्स दे अपीयर कलरफुल। सिमिलरली जब आपने कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी देखी है सब बच्चों ने, जब आप कॉम्पैक्ट डिस्क को सनलाइट में लेके जाते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारे कलर्स नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चा ये है कि ये जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना, ये हमें ये कह रही हैं कि ये जो हमारा सनलाइट है ना, इट इज़ मिक्सचर ऑफ कलर्स, डिफरेंट कलर्स। अब इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स डू अनदर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक अ प्रिज्म, okay, and prism is easily available at your school. You can just see that prism. ये ऐसा होता है और ये ग्लास का बना होता है। अब आपको प्रिज्म लेना है और आपको क्या करना है? that you have to allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a डार्क रूम। एक डार्क रूम में आपको इसको प्रिज्म को रखना है, सेट करना है। ठीक है, सपोज दिस इज़ योर रूम और आपने इस प्रिज्म को यहाँ सेट करा है। ठीक है, आपने प्रिज्म को यहाँ सेट किया और आपने क्या किया? विंडो से एक छोटा सा होल बनाया जहाँ से सिर्फ एक नैरो बीम ऑफ लाइट आ सके। अब ये क्या होगा? ये नैरो बीम ऑफ लाइट प्रिज्म के एक फेस पे, ठीक है, इट विल फॉल ऑन द वन फेस ऑफ द प्रिज्म। ओके, दैन स्टूडेंट let the light coming out of the other face of the prism. अब जब यहाँ से निकलेगी तो दूसरे फेस पे भी आएगी। Clear? So you have to want to fall that light on the white sheet paper or on a white wall. Have a look here. You will obtain that कि ये जो sunlight है it will split into 7 color. This beam of sunlight when passing through a prism, it will split it into 7 different colors. So we can say that, or this activity shows that कि sunlight is consist of 7 कलर्स। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी और करते हैं। हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक अ डिस्क। देखो, हैव अ लुक, आपको एक ऐसी डिस्क बनानी है। अब ये डिस्क वाली एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि जब हम इन 7 कलर्स को मिक्स कर देते हैं ना तो हमें वाइट कलर ऑब्टेन होता है। व्हाट यू हैव टू डू? आपको 10 to 15 मीटर्स के डायमीटर का एक सर्कल लेना है, एक डिस्क लेना है। इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है। डिफरेंट कलर्स या तो आपको क्या करना है? वाइट पेपर पे बना के सेगमेंट्स बना के उनको फिल कर देना है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो वी कैन जस्ट अरेंज द डिफरेंट कलर्स, दीज 7 कलर्स, और उनके ऊपर
पेस्ट कर देना है। अब इसके बीच में आपको एक रॉड लगानी है और देन यू हैव टू रोटेट इट फास्टली। जब हम इस डिस्क को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं स्टूडेंट, इट विल अपीयर लाइक दिस। ठीक है, दिस डिस्क इज हैविंग 7 कलर्स, बट जब हम इसको बहुत तेज़ घुमाते हैं इट विल अपीयर लाइक whitish. Clear everybody? So what is the conclusion by doing this activity? When the disc is rotated fast, clear, then the colors get mixed together and the disc appears to be whitish. Okay, हमें डिस्क कैसी नजर आ रही है? सफेद नजर आ रही है। Such a disc is popularly known as Newton's disc. So in this way the sunlight we are getting is of white color. Basically it is a mixture of different 7 colors. Okay, so student, with this topic this chapter completes here. Revise what we learned earlier and what we studied today. Okay, so student, in the coming video we will discuss the question answers of this chapter. Till then, revise all the stuff that we already taught in the previous video, in today's video. Till then, student, take care yourself and thank you.